I request Shri Sachin Sharma, Additional Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to kindly escort Honorable Shri Justice Atul Sridharan, sir, to the dais, please. Thank you, sir. I request Ms. G.V. Rashmi, Secretary, Department of Women and Child Development, Government of Madhya Pradesh, and Shri Harjinder Singh, Director, Department of School Education, to please take their seats on the dais. The topic for this session is Safeguarding the Rights of Girl Child, Sectoral Progress and Commitment for Action. This session shall be chaired by Honorable Shri Justice Atul Sridharan, sir, who is Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, and is also the Chairperson, POXO Committee, High Court of Madhya Pradesh. In order to mark a respect to our honorable dignitaries on the dais, I request Shri Sachin Sharma, sir, Additional Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to please welcome Honorable Shri Justice Atul Sridharan, sir, by presenting his Lordship a planter. Thank you, sir. I request Shri Sachin Sharma, sir, to also welcome Madam G.V. Rashmi, who is Secretary, Department of Women and Child Development, Government of Madhya Pradesh, by presenting her a planter. Thank you, sir. I request Shri Saurabh Singh, OSD, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to please welcome Shri Harjinder Singh, Director, Department of School Education, by presenting him a planter. Thank you. I request the Honorable Chair to please deliver the opening remarks. Welcome to the last session. And this is what Justice G. Raghuram of the National Judicial Academy, the erstwhile director, used to call as the graveyard hour, for reasons which is very well evident. But we have a panel of two highly illustrious bureaucrats, Madam G.V. Rashmi, who is Secretary, the Department of Women and Child Development with the government, and Dr. Sanjay Goel, who is the Secretary with the Department of School Education, Government of Madhya Pradesh. Oh, sir. Oh, yeah, you're the director. What's your good name? Oh, you're Mr. Harjinder Singh. I'm sorry. I stand corrected. Dr. Sanjay Goel is not available to join in today. So, coming to the last session, Safeguarding the Rights of the Girl Child, Sectoral Progress and Commitment for Action. So, as far as a lot has been said on the rights of the girl child and the laws that are related to her. And one would think of POXO as a law that was brought in primarily to safeguard the girl child from sexual offenses. But the manner in which the law actually operates today, you see, the enforcement of the law as it is by imposing or enforcing the rule of law can result in injustice also. You have a lot of situation about at least 90% of these cases are runaway cases from our rural areas where children are run away upon attaining puberty, and they go to an adjoining state, work there as daily wagers, and after some time when they're caught, the man is put into prison. But then the POXO is also a gender-neutral legislation. So let us assume a situation where a 19-year-old girl runs off with a 17-year, 11 months old boy. They go work in Gujarat for 2 years, they get married there, have a child, and when they come back, the girl is arrested because she was supposed to be the person who has committed the offense. Because the boy was only 17 years and 11 months at the time when they ran away, so he is a minor. So it doesn't matter whether it's a boy or a girl. But the fact remains that when they come back, the girl is put in prison, and the boy is looking after the children, home, hearth, everything. And she may have to be in for as long as 10 years sometimes, or perhaps if it is continuous, the court may sentence her for 20 years in prison. So the gender really doesn't matter here. So what we are looking at is the operation of the law in one of the cases, in fact, in Gwalior, the Gwalior bench, which was that was a time when there was a strike going on. And this lady came up before the court at the Gwalior bench with 2 children in tow. She said that her husband is in jail. He has been sentenced to 10 years imprisonment.
and that she is on the verge of penury. Her parents don't accept her, her in-laws don't want her. The only option before her is prostitution to ensure that she can at least, for the sake of survival of the children. So the court heard the matter, and because the prosecutor was there, the defense counsel, the appellant's counsel was not there. Nonetheless, court went ahead and heard the matter, acquitted the man because the age of the girl was not proved beyond reasonable doubt like any other, fact in issue or a relevant fact which had to be proved. So the court acquitted her. The court also then addressed to the Law Commission of India saying that, look, the law that you had prepared for the welfare of the girl child and is now seems to be working in reverse. It's working against the interest of people who got married. This was a case where the road to hell was paved with good intentions. And it was addressed to the Law Commission, and the Law Commission apparently acted on the, information given by the High Court, and in fact forwarded that to the Parliament also, that in a case where the boy and the girl have got married and they have a family, there must at least be an amendment where the discretion is given to the special judge, not to be bound with the minimum sentence, or rather, explore other things like community service, whereby his services could be taken by the community obviously for a small amount of payment that has to be given to him, but at the same time would suffice because it was done under the ignorance of the law. And unfortunately, as far as law is concerned, there is it's found on the maxim that ignorantia juris namenem excused. That is, the law does not excuse the ignorance of a man of that law, and he goes and breaks the law, he's still punishable. But we have to look at that maxim and its imposition and the way we apply it in India on the ground of our ground realities, where in the rural area, the female literacy drops down to 52% in Madhya Pradesh. And in urban areas, it's about 76%. That itself goes to show which are the places where you have better access to education. And the ones who are running away from these villages are from the lowest strata of the society, that is at 52%. And which also goes to show that villages in Madhya Pradesh, you don't have proper education, you don't have proper nutrition, you don't have avenues for employment. That is why they run away to other states for the purpose of employment. And in such a scenario, you have people who are being punished only because they don't know that to respond to natural instincts is an offense in this country. So keeping all that in mind, the courts also have to bear the responsibility of ensuring that the quantum of injustice that is done by us is down to the bare minimum. Unfortunately, why I say that is, there may be cases where the age might have been proved beyond reasonable doubt, but at the same because of which the punishment has to be upheld, because it is the legislative intent. The legislature has to change it. It doesn't appear that the legislature is right now interested in changing it. So I would now like to hand over the mic to the expert panelists that we have today. Madam Rashmi, if I can request you to take over. Honorable Chair and other honorable judges who are present here, members of the judiciary, administrative services, civil society members and other friends who are here. The topic, जो topic मुझे आज दिया गया है, safeguarding the girl child, ये बहुत ही vast topic है, बहुत ही complex है, और I am not sure कि ये 10 मिनट में कितना मैं justice के लिए कर पाऊँगी. मैंने एक दो facets ही इसमें I have chosen only a couple of facets जो मुझे लगता है कि मैं 5-10 मिनट में इसके बारे में बात कर सकती हूँ. सेफगार्डिंग गर्ल चाइल्ड, ये जो टॉपिक क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, तो जस्ट एक एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ कि 2022 का जो NCRB का डेटा है उसमें 47,000 बच्चे मिसिंग थे एंड 1.97 लाख विमेन
मिसिंग थे। तो आज की ये ज़माना जिसमें इंटरनेट से हम इतना कनेक्टेड है, लाइव कनेक्टेड है, ऐसी टाइम में इतने सारे लोग मिसिंग होना, विमेन मिसिंग होना इज़ समथिंग दैट वी मस्ट रियली थिंक अबाउट. But we will keep this, we will start this presentation with some figures and data which is not very very depressing. I think already in points पे लोगों ने बात किया है, लेकिन 2005 और 20 के बीच में चाइल्ड मैरिज की बात मैं कर रही हूँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है. ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इज़ गोइंग अहेड, सब जगह प्रोग्रेस हो रही है. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फिगर्स नहीं हैं, बट एटलीस्ट डिप्रेसिंग तो नहीं है. स्पेशली एमपी आप देख रहे हैं, डार्क रेड से लाइट सैफरन, मतलब ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा चाइल्ड मैरिज था, अब 20% 20 से 29% के बीच में आया है. चाइल्ड मैरिज में मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो इन ऑर्डर ऑफ स्टेट्स काफ़ी हाई था एमपी का रैंक, बट अभी जो मेजर स्टेट्स है उसमें 8वें नंबर पर आया है. ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑलमोस्ट 2005 और 2021 के बीच में 29.9 परसेंटेज पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट चाइल्ड मैरिज में हुआ है. ये एमपी की प्रोग्रेस की बात मैं कर रही हूँ. But I would not condone these figures. I will not say कि we should be happy और हम अपने progress, we should not pat our backs. There's a lot of work to do. But ये जो अभी मैं जो डेटा दिखा रही थी, ये बहुत सारे फैक्ट्स छुपाती है. इस स्लाइड में there are a lot of questions I'm just posing. I don't have answers to everything. सर ने मुझे एक्सपर्ट बुलाया, but I hardly think I'm an expert. I think a lot of you know a lot more, but we are trying as government, as departments, we are trying a lot to improve the situation. तो ये जो क्वेश्चन मैं इसमें पूछ रही हूँ, यू कैन लुक एट द डिस्पैरिटी चाइल्ड मैरिज का मध्य प्रदेश में. आप राजगढ़, श्योपुर, छतरपुर, ये जो लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट्स आप देख रहे हैं, इसमें चाइल्ड मैरिज इज़ ऑन पार विद द वर्स्ट इन इंडिया, जो फिगर्स हैं. एट द सेम टाइम जो डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे बालाघाट है, जबलपुर, हरदा, ये एमपी के एवरेज से कम है, इंडिया के एवरेज से कम है. तो इसके लिए हमारे पास आंसर्स नहीं है, बिकॉज यू डोंट सी एनी पैटर्न. ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्राइबल एरियाज़ में चाइल्ड मैरिज कम है या अर्बन एरियाज़ में चाइल्ड मैरिज कम है. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ पैटर्न. आई थिंक टू मेक गुड लॉज, टू मेक गुड पॉलिसीज़, हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है. Being a government servant, I just want to speak about a few things that the government has done child marriage को tackle करने के लिए. 2006 में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट का जब एक्ट पारित हुआ, तब से चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पर अपॉइंट हुए हैं. और बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है ग्राम पंचायत लेवल पर या वार्ड के लेवल पर होता है, तो उसको हम लोग रिकग्नाइज करते हुए वी आर ऑल्सो गेटिंग CMPOs एट द पंचायत एंड द वार्ड लेवल. दिस इज़ इन प्रोसेस, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार एक बहुत ही अच्छा लाइव पोर्टल बना है. आज की IT के ज़माने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइव ट्रैकिंग रहे, इंफॉर्मेशन रहे. इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द नेम्स ऑफ ऑल द CMPOs, उनके डेसिग्नेशन, उनके फ़ोन नंबर्स यहाँ पे रहता है, एंड कोई भी कंप्लेंट वगैरह डालना है तो इस पर हम कर सकते हैं. सो दिस पोर्टल हैज़ बिन ऑफ ग्रेट सपोर्ट टू द गवर्नमेंट in all the work we are doing. The state is also finalizing its standard operating procedure to tackle child marriage. तो ये काम MP गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक किया गया है. This is a repetition. द नेक्स्ट इशू जिसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन. वन ऑफ द डिफरेंट क्राइम्स, अभी तो हमने चाइल्ड मैरिज भी हम क्राइम एंड वायलेंस ही बोल सकते हैं. इसमें भी जो NCRB डेटा में 2017 में MP हैड बिकम इनफेमस फॉर द नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और थोड़ा सा फिर घटा है. बट दीज फिगर्स आई एम जस्ट फ्लैगिंग इट. आई थिंक इसमें हमको एब्सोल्यूट नंबर्स देखना चाहिए. इसमें मैं कंपैरिजन नहीं करूँगी, ना प्रोग्रेस देखूँगी, क्योंकि कभी जब पुलिस बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव एंड एफिशिएंट होते हैं, जुडिशरी इज़ रियली फास्ट एंड पीपल आर एम्पावर्ड, द क्राइम्स विच आर रजिस्टर्ड विल इंक्रीज. सो इन अ वे इसको वी कैन नॉट रियली जज दीज नंबर्स. इसको हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए. दिस इज़ जस्ट अ फिगर आई वांटेड टू ब्रिंग बिफोर ऑल ऑफ यू. ये हमारा गवर्नमेंट का ये डेटा है. दिस ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू फ्लैग टू ऑल ऑफ यू.
विमेंस हेल्पलाइन 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये दिस इज़ अ 24/7 हेल्पलाइन विमेन के लिए, और इसको ऑलमोस्ट इसमें 1 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स एक साल में रजिस्टर हुए हैं, और 85% डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। मतलब जो स्पेस विमेन के लिए सबसे सेफ होना चाहिए, घर, ये सबसे अनसेफ है। तो गवर्नमेंट घर के अंदर जा कर के कितना हम हेल्प कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी मैनेजमेंट, देन एजुकेशन, ये सब चीज़ें इसमें हमको देखना चाहिए। यहाँ पर भी जो हम डेटा देखते हैं विमेन हेल्पलाइन में जो कॉल्स आते हैं, यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड है कि जो सिटीज़ है जहाँ पे एजुकेशन बेटर है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बेटर है, एम्पावरमेंट, आई वुड से फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज़ मोर, यहाँ पे ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव। इट कुड ऑल्सो बी दैट वी कैन से कि दूसरे एरियाज़ में वायलेंस कम होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। सो दिस इज़ अनदर डेटा दैट आई जस्ट वांटेड कि आप लोग इसके बारे में सोचें, और वी कैन डिस्कस दिस। चाइल्ड हेल्पलाइन, आज हम गर्ल सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, बट चिल्ड्रन वी डू नॉट हैव डिसएग्रीगेटेड डेटा, बट ये चिल्ड्रन के लिए है। इसमें लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कम फ्रॉम गर्ल्स ऑल्सो। इसमें भी 35% से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आते हैं वो काफ़ी सीरियस है। चाइल्ड अब्यूज़, मिसिंग चिल्ड्रन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, इस टाइप की जो है शिकायतें आते हैं। और इसमें भी डेटा जो आप देखेंगे कहाँ से कॉल्स आते हैं, तो ये सिटी से ही है। सबसे ज़्यादा जो है भोपाल से है, इंदौर से है, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, जबलपुर। So once again we can say that empowering the child, education, access, these are things that can help our children. टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो 2-3 इश्यूज़ अभी मैंने जो फ्लैग किया है, तो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है रेगुलेटरी भी होता है, और थ्रू स्कीम्स, थ्रू कैश ट्रांसफर्स वगैरह भी होते हैं। तो एमपी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है लाडली लक्ष्मी योजना, वो मेनली 2005-06 में लॉन्च हुआ था टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज। इस स्कीम में ऑलमोस्ट ये इंसेंटिव, जो बच्चे स्कूल जाते हैं स्पेशली 12th तक जाते हैं और जिनका बाल विवाह नहीं होता है, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए टाइम टू टाइम पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और 21 साल की एज में 1 लाख रुपए भी बच्चे को मिलता है। और ये हमने स्टडीज़ करवाया है, तो इसका जो है इम्पैक्ट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड हैज़ बीन फाउंड टू बी पॉजिटिव। एंड इसका फ़ायदा लेने के लिए हमने वी हैव नॉट स्टॉप्ड इट जस्ट गिविंग मनी टू द गर्ल्स एट द एज ऑफ 21, तो हमने लाडली लक्ष्मी क्लब्स भी बनाया है। ये यूनिसेफ के सपोर्ट से हम लोग इसको प्रोग्राम को चला रहे हैं, जिसमें जिन लड़कियों को राशि दे रहे हैं जो एजुकेटेड है, उनके साथ हम अदर एरियाज़ में भी स्किलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन एरियाज़ में भी हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये भी एक कैंपेन मोड में गवर्नमेंट आई सी, बिकॉज विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट, विदाउट ट्रेनिंग एंड विदाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, कोई भी सेफ्टी ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज़ मोस्टली ऑल्सो अ सोशल प्रॉब्लम। हमारी जो कल्चर है, हमारे जो नॉर्म्स है, इसमें भी हमको बदलाव लाना चाहिए। द वे वी ऑल थिंक, उसमें भी बदलाव लाना चाहिए। तो इसमें सिटीजन्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट के अलावा सिटीजन्स का इसमें एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से और एमपी गवर्नमेंट में इसको चलाया जा रहा है। इसमें जो एमपी गवर्नमेंट में जो मेन एक्टिविटीज़ पिछले साल में किया है, तो जेंडर चैम्पियंस, मेनली रोल मॉडल्स, यंग बच्चे जो रोल मॉडल्स हैं जिनको बच्चे एम्यूलेट कर सकते हैं, उनको हमने बनाया है। ऑलमोस्ट 3000 इवेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के सेंसिटाइजेशन के लिए हमने अरेंज किया, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। नो योर राइट्स, बेसिकली लीगल राइट्स को सेंसिटाइज करने के लिए हमने प्रोग्राम्स किया है। 11,000 बच्चियों को पुलिस फोर्सेस में या आर्मी वगैरह में एनरोल करने के लिए ट्रेनिंग्स दिया है, और 51,000 एडोलेसेंट गर्ल्स को मार्शल आर्ट्स में, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल सेफ्टी ऑल्सो। दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ सम ऑफ द प्रोग्राम दैट द डिपार्टमेंट हैज़ रन इन द लास्ट couple of years.
ये कुछ अदर स्कीम्स है, शक्ति सदन, इसके बाद हमारे वन स्टॉप सेंटर चलता है। तो ये विमेन जो डिस्ट्रेस में होते हैं, हु आर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा, इनके लिए हम लोग काउंसलिंग, देन रेसिडेंशियल अरेंजमेंट्स, ये सब हेल्थ फैसिलिटी सब दिया जाता है। वन स्टॉप सेंटर जो है ये टेम्प्रेरी होता है और शक्ति सदन जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। शौर्य दल आई थिंक इज समथिंग दैट एवरीबडी हैज स्पोकन अबाउट सिंस मॉर्निंग। तो ये बेसिकली वी अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का आउटरीच कितना कम है, कितने ऑफिसर्स कितना काम कर सकते हैं, पुलिस कितना काम कर सकते हैं। तो ये इट इज़ अ कार्डर ऑफ वॉलंटियर्स, ऑलमोस्ट 19 लाख वॉलंटियर्स है एंड आई थिंक दिस हैज़ टू बी डेफिनेटली स्ट्रेंथन्ड। ये एक गवर्नमेंट का काम है। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इसमें भी adoption centers, then orphanages, child safety centers, ये सब government is running in these. Now talking about the challenges, I will speak about two challenges at two major levels. एक हमारी जो सोशो कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस है, ये मैक्रो लेवल की चैलेंजेस है। एजुकेशनल अटेनमेंट है, विमेन और बच्चों का एजुकेशनल अटेनमेंट एंड लो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ये आपको सबको पता होगा, इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो दिस इज़ द मैक्रो लेवल। अपना हमारे डिपार्टमेंट इसमें डायरेक्टली बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, स्पेशली एजुकेशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। बट जो माइक्रो लेवल में जो प्रॉब्लम्स है, जो लो अवेयरनेस है, और अभी तक जो प्रिवेंशन पे फोकस नहीं होता था, केवल जो महिलाएं पीड़ित है उन पर फोकस होता था। बट प्रिवेंशन इज़ आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट एंड अ मोर प्रोएक्टिव थिंग टू बी डन। अनसेफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस, जो अभी मैंने दिखाया था, डोमेस्टिक वायलेंस घर के अंदर होता है। पब्लिक स्पेसेस हमारे यहाँ पे सेफ़ नहीं है। लड़कियाँ 6 बजे 7 बजे के बाद नहीं जा सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी नहीं जा सकते, कई जगह नहीं जा सकते हैं। एंड हमारी जो लिमिटेड मैन पावर है। एंड ये लास्ट वाला पॉइंट आई थिंक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर, द चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम। अभी फिजिकली हम लोगों को रोक सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बट व्हेन क्राइम इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, व्हेन इट इज़ इंटरनेशनल, इट्स ऑन द नेट एंड आपको पता नहीं आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, उनकी क्या एक्सेस है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस इन द फ्यूचर। आई थिंक द गवर्नमेंट, जुडिशरी, ऑल ऑफ अस शुड वर्क टुगेदर टू प्रोएक्टिवली थिंक कि हमको आगे क्या काम करना चाहिए इस एरिया में। I'll skip this slide. I can't see the others. And as far as the way forward, डिपार्टमेंट को हमको क्या करना चाहिए, इसमें 2 चीज़ों पर I would like to focus, although there are a lot of things that I've written over here. एक तो prevention, we must जबकि all our schemes, everything is focused on the post rehabilitative and the post penal action. We should focus more on prevention, changing the norms and attitudes of the people. And lastly, I think ये coordination and strengthening, ये बहुत सारे other speakers ने भी बात किया, बहुत सारे अच्छे laws है, programs है, schemes है, systems है, but we don't speak to each other. कभी data अच्छा नहीं है, quality of data is not good, and then there is no coordination between government departments or between government and civil society. These are 2 areas which I think the government department needs to focus on. Saying this, I'll end my presentation. Thank you so much. थोड़ा सी और चलेगा। Good evening, Honorable Justice, subject matter experts, and senior officers from Madhya Pradesh government, senior judges from the judiciary. Thank you, ma'am. I'm representing my secretary school education here. He couldn't join because of health reasons. I'm Director Rajya Shiksha Kendra. In Government of India, they say that this position is State Project Director. Along with that, I bear the responsibilities of Director SCRT. So I'm responsible for whatever the books and the curriculum is created for the state of Madhya Pradesh.
in the context of whatever was spoken here, and since I joined late, so a lot of data I saw in the previous presentations, and I could see that education when it comes to dropout and enrollment, so there are a lot of challenges which we are seeing currently. So I've prepared some slides. The flow of presentation is the way the topic has been given to us, but there's many repetitions. इसमें बहुत सारे points जो हैं वो repeat हो रहे हैं slides में, तो I'll skip those, and I would like to set the context of today's discussion on this topic by mentioning in the larger context, when we talk about the global context, there was something called Millennium Development Goals, फिर बाद में वो Sustainable Development Goals में आए, और हम लोग इंडिया में आजकल विकसित भारत 2047 की काफ़ी बात कर रहे हैं, और हम लोग जिस विभाग को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो राइट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू इम्प्लीमेंट द RTE Act in letter and spirit on ground. So RTE Act came in 2009 and the state created their own rules in 2011, amended in 2023, और अभी recently हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसमें एक NEP 2020 आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें कि बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रेजेंटेशन आई एम जस्ट सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट. सो इन टर्म्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क वी आर गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ RTE Act एंड NEP 2020. NEP 2020 ने हमारे जो बच्चों की जर्नी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया. एट द एज ऑफ 3 दे ज्वाइन अ स्कूल विच इज़ अ प्री स्कूल एंड दे कॉल इट द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ लर्निंग. और ये पॉलिसी के अंदर जो बच्चे की एजुकेशन के पहले 5 साल थे, 3 साल प्री प्राइमरी के और ग्रेड 1 और 2, उसको फाउंडेशनल ईयर बोलता है, आधारशिला है. हम लोग उसको फाउंडेशनल ईयर बोलते हैं हमारे यहाँ पे. और महिला बाल विकास जब अपने यहाँ पे आंगनवाड़ी में बच्चे को पढ़ाता है तो एक्चुअली उनकी बुक का नाम आधारशिला है. दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, द फाउंडेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और द वे यू कैन अंडरस्टैंड इट. एक बार वो फाउंडेशनल ईयर क्रॉस करता है 3 से 8 वर्ष की, तो उसके बाद उसके प्रिपरेटरी ईयर स्टार्ट होते हैं 8 से 11 वर्ष के. मिडिल ईयर आते हैं उसके 11 से 14 वर्ष के, और फिर सेकेंडरी आता है 14 से 18 वर्ष का. और ये स्टेजेस जो हैं वो कोइंसाइड करती है उसकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से, कि जिस तरह से उसकी बॉडी, वो एक चाइल्ड है, फिर वो ग्रो कर रहा है, एडोलेसेंस में आता है, फिर वो अडल्ट बनता है, तो वो उसके साथ स्टेजेस में चल रहा है. If I talk about coming back to the presentation, so the biggest challenge for the education system is to make sure that there is universalization of enrollment. तो हमारा हर बच्चा जो शाला में होना चाहिए इस एज ब्रैकेट में जिसमें मैंने आपको NEP की स्टेजेस में बताया, उनको शाला तक लाना, एनरोलमेंट करवाना, एडमिशन करवाना, और ये सुनिश्चित करना कि वो शाला से बाहर ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है और मेरा सबसे बड़ा दायित्व है. इट्स माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड ऑफ स्कूल गोइंग एज इज एक्चुअली इन स्कूल एंड नॉट आउट ऑफ स्कूल. So there are cases where students have never been enrolled. There are cases where students join, but enrollment के बाद दूसरा challenge हमारे सामने आता है कि उसे retain करना. Retain करने के लिए जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने, जैसे सेक्रेटरी WCD ने बताया कि जो मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास में कर रहा है, तो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, आई वुड लाइक टू गो थ्रू ईच वन ऑफ देम. हॉस्टल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गर्ल्स की एजुकेशन में, जहां पर माता पिता चिंतित हैं कि बच्चा बाहर है घर के, उसकी सुरक्षा की चिंता है कि डेली वो जाएगा आएगा. तो मध्य प्रदेश में एलिमेंट्री तक 8वीं कक्षा तक 207 एलिमेंट्री के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उसको हम हॉस्टल को विद्यालय बोल रहे हैं बिकॉज दैट हॉस्टल इज टाइड टू अ स्कूल. और 201 हमारे जो हॉस्टल्स हैं वो 9वीं से 12वीं तक हैं. ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं 324 हैं, और उसका नंबर मैंने मेंशन किया. इन छात्रावासों में जो भी भारत सरकार से हमें समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो भी लाभ और जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी उनके एंटाइटलमेंट्स हैं, वो मैंने मेंशन किए हुए हैं. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अगर बात करें, जिन बातों की अक्सर आप मीडिया में देखते हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टॉयलेट्स एंड ऑल थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो जो प्रयास साथ साथ हम लोगों ने पिछले 1 साल में किए हैं कि लगभग 9,500 टॉयलेट्स जो डिसफंक्शनल थे उनको फंक्शनल किया गया, क्योंकि ये भी कई कारण बताया जाता है जिसकी वजह से बच्चियाँ खास करके ड्रॉप आउट होती हैं. बेसिक चीज़ है, बट अभी भी 5,000 स्कूल ऐसे बड़े थे जिनकी इलेक्ट्रिफिकेशन पेंडिंग नहीं थी, उसको हमने सैचुरेट किया. आपने सुना होगा कि बच्चों को साइकिल की एक स्कीम है मध्य प्रदेश शासन की. जितने भी मध्य प्रदेश में स्कूल हैं, पहले प्राइमरी स्कूल बने 1ली से 5वीं तक,
फिर उसके बाद सेकेंडरी में 6 से जो मिडिल स्टेजेस में 6 से 8 के थे। और बहुत सारे गांवों में, क्योंकि आरटी का मैंडेट ही कहता है कि हमारे हर 1 किलोमीटर के अंदर एवरी 1 किलोमीटर शुड हैव अ शाला ऑफ प्राइमरी, और हर 3 किलोमीटर में एक मिडिल होना चाहिए। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे प्राइमरी स्कूल्स अलग बने, मिडिल स्कूल्स अलग बने, और जब बच्चा 5वीं से 6th में 5th से 6th में जाता है, जब उसका एक मेजर चेंज आता है, तो बच्चे कई ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उस वजह से उसको टारगेट करने के लिए एक हॉस्टल्स बने, जो मैंने आपको बताया। सेकेंडली, साइकिल इसी चीज के लिए दिया गया कि अगर आपके गांव में स्कूल नहीं है, तो आप, अगर आपका जो घर है आप वो प्राइमरी स्कूल के पास है, मिडिल स्कूल आपके दूर है, तो वो साइकिल्स योजना जो आई, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि वो लगभग 5 लाख के आसपास साइकिल्स लास्ट ईयर दी गई। इस साल 4,30,000 जो साइकिल्स दी गई। ऐसे लैपटॉप्स दिए जाते हैं हर साल, लैपटॉप्स की राशि दी जाती है, लैपटॉप नहीं दी जाते उन बच्चों को जो कि 75% से ज्यादा स्कोर करते हैं मेरिट को प्रमोट करने के लिए। स्कूटी दी जाती है हर मेल और फीमेल टॉपर को मध्य प्रदेश में, उसके एकेडमिक एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक्स काफ़ी लंबे टाइम से दी जा रही हैं। इस बार हमने जो नवाचार किया, या उसको आप इस तरह से कहिए कि जो एक इंस्ट्रक्शनल आवर्स का आरटी में मैंडेट है कि हर कक्षा में बच्चे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उसका समय नष्ट ना हो। अक्सर आपने सुना होगा कि जून में स्कूल चलो अभियान चलता था। इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके वो स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल से शुरू किया, और किताबें समय पे पहुंची, बिकॉज वो बहुत जरूरी है कि स्कूल समय पे चालू हो और स्कूल पे किताबें टाइम पे आएं। यूनिफॉर्म्स हर बच्चे को दी जाती हैं, 2 पेयर एवरी ईयर। डीबीटी करते हैं, बच्चा अपनी सुविधा से उसमें कुछ पैसा अपना उसमें डाल के अपने हिसाब से खरीद सकता है। कुछ अन्य योजनाएं हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। दोज गर्ल्स हु डोंट हैव अ फादर, पितृहीन कन्या है, और सिंगल गर्ल चाइल्ड है जो मेरिटोरियस, उनके लिए स्कीम्स हैं। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना है SC/ST गर्ल्स के लिए, और जो CWSN गर्ल्स हैं, क्योंकि इस विषय पे ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि महत्वपूर्ण जो विषय था कि जो गर्ल्स हैं पर साथ में डिसेबल्ड हैं, उनके लिए जो स्टाइपेंड की योजना है 2,000 रुपये प्रति वर्ष कम है। ये अलाउंसेस बढ़ने चाहिए, और इसके ऊपर विचार हो कि ये बढ़ने के लिए भविष्य में जो भी अपग्रेडेशन होगा वो होगा ज़रूर। हाइजीन किट्स जो हैं वो हम लोग लास्ट ईयर उसके लिए सैनिटरी पैड्स के लिए हम लोगों ने डीबीटी किया था। लगभग 18.5 लाख बच्चियों को जो 7th से 12th तक हैं। रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, जैसे कि बच्चियों को साइकिल दिया जाता है। एक अक्सर पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि अगर हम अपने गर्ल चाइल्ड को दूर भेज रहे हैं गाँव से, साइकिल है पर ठीक है, पर दे शुड बी सम काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। तो ये हम लोग लगभग 40,000 गर्ल्स को इस साल बेनिफिट कर रहे हैं उनको, और इसको आगे वाले टाइम में हम लोग बढ़ाएंगे। कुछ काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइंस हैं, जो कि आप सुनते होंगे कि परीक्षा के दौरान तनाव को लेके एडोलेसेंट बच्चे, जो भी बच्चियां तनाव में रहती हैं, उसके लिए हेल्पलाइन मध्य प्रदेश बोर्ड ने चलाई है। ये विशेष स्कीम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष इसका शुभारंभ हुआ, कि जो हमारे PVTGs हैं, भारिया एंड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, उसमें उनके लिए विशेष तौर पे ये स्कीम टारगेट की गई, PM जनमन, जिसमें कि मध्य प्रदेश को 106 हॉस्टल्स मिले बॉयज और गर्ल्स के लिए। और जुगा स्कीम जो आप DA जुगा दिख रहे हैं वो नॉर्मल ट्राइबल्स के लिए है, जिसमें कि हमें 210 छात्रावास पिछले गत 1 वर्ष में ही मिले हैं। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो KGBs हैं, NSCB हैं, उन पे सभी में डिजिटल एजुकेशन को लेकर स्मार्ट क्लासरूम्स लगाए जा चुके हैं। गत वर्ष हमने 10,000 से ज़्यादा स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम लगाए हैं। मध्य प्रदेश के सभी टीचर्स पिछले 3 सालों में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, उनको टैबलेट मिला है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि एक भारत सरकार की योजना के तहत, जिसको हम लोग विद्या समीक्षा केंद्र बोलते हैं, इट्स इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम विच इज सेटअप इन माय ऑफिस। उसके अंदर हम लोग स्टेट लेवल पे कमांड रूम से, और जो क्योंकि अदर एंड पे द टीचर्स आर हैविंग द टैबलेट्स, भारत सरकार एक बहुत बड़ा डेटाबेस मेंटेन करता है विच इज द लार्जेस्ट डेटाबेस इन द वर्ल्ड। इट्स कॉल्ड UDICE+। जितने भी स्कूल हैं सबका एक लॉगिन ID है, वो अपना डेटा खुद उस पर भरते हैं। और UDICE+ पे लगभग 15 लाख स्कूलों का, 95 लाख टीचर्स का, और 26 करोड़ इस देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा आप देख सकते हैं। और अगर आप गूगल करेंगे तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज दिस काइंड ऑफ ए डेटाबेस, क्योंकि हम लोग अक्सर आजकल डेटा सेंट्रिक डिसीजंस की बात करते हैं, तो UDICE डेटा के आधार पे जो निर्णय लिए जाते हैं वो डेटा सेंट्रिक है।
NEP कहता है कि अपनी मातृभाषा में बच्चे को शुरू के सालों में पढ़ाया जाए। तो हमने रिसेंटली मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं वहाँ पर हिंदी रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज जो कि डायलेक्ट लोकल बोला जाता है, तो ट्राइबल एरियाज में हमने मल्टीलिंगुअल स्टोरी बुक्स भी दिए हैं, क्योंकि जो शुरू के साल हैं बच्चा उसमें अपनी जो डायलेक्ट है उसमें अगर उसको पढ़ाया जाए तो वो जल्दी पिकअप करता है, उसका उद्देश्य वो है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ प्री प्राइमरी स्कूल शिक्षा विभाग चलाता है, पर ज़्यादा बड़ा मैंडेट जो है वो महिला बाल विकास के पास है। तो वो एक जो स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन और कन्वर्जेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमने एक वर्ल्ड बैंक का स्टार्स प्रोजेक्ट है जिसमें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्कूल एजुकेशन ने ट्रेन किया है अंडर द स्टार्स प्रोग्राम। द आइडिया इज टू मेक श्योर कि हमारे जो पहले 3 वर्ष हैं जिसमें कि महिला बाल विकास के पास ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो उनमें जो भी कुछ जो पढ़ाई का एलिमेंट है, जो प्री स्कूल एजुकेशन है, उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम लोग उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। NEP 2020 के बाद एक बहुत अहम एक प्रोग्राम जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया जिसको निपुण भारत बोलते हैं, कि कुछ ये माना जाता है कि कुछ लैंग्वेज की और न्यूमरेसी की बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं, अगर आपको वो नहीं आएंगी तो आप आगे की कक्षा के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकते। तो वो निपुण भारत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए निपुण भारत को मध्य प्रदेश ने मिशन अंकुर की तरह चलाया, और जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स को हमने अडॉप्ट किया एज ए डायरेक्टर SCERT, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दोज NCERT टेक्स्ट बुक्स जो हमने 2016 में ली। उसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के लिए वर्क बुक्स बनाई ताकि हमारे जो निपुण भारत के गोल्स हैं और लैंग्वेज और न्यूमरेसी की जो कॉम्पिटेंसीज है उसमें हम लोग उनको निपुण बना सकें। और ये FLN मेला हर बच्चे के एकेडमिक जर्नी में 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह में 10th, 20th एंड 30th वीक पे मनाया जाता है, जिसमें उनके पेरेंट्स आते हैं। आइडिया इज कि पेरेंट्स भी उस जर्नी में शामिल रहें। अगर मैं इनोवेशन की बात करूं तो अगर आप लास्ट वाले 2 पॉइंट्स देखेंगे स्लाइड के ऊपर, NEP ये भी कहता है कि शुरू के सालों में बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो बर्डन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्ले बेस्ड पेडागोजी। सो हम लोगों ने 7 फ्लोर गेम्स बनाई जो लास्ट ईयर लॉन्च की, कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ भोपाल में गवर्नर हाउस के पास एक स्कूल था, वहाँ हमने एक हफ्ता बच्चों के साथ जो पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे थे उनको हमने बोला कि हम लोग आज पूरा हफ्ता हम स्कूल नहीं चलाएंगे और स्कूल को बंद करके आपको सिर्फ इन गेम्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। देखा ये गया कि बच्चों का अटेंडेंस जो है एकदम से शूट हुआ, और बच्चों के अंदर नेचुरली जो स्कूल आने की जो एक स्पिरिट होती है वो बढ़ी है, और उसको एक्सपैंड करके पूरे मध्य प्रदेश में ये फ्लोर गेम्स लेके आए, हम लोग लेके आए। उसमें उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं 7 गेम्स की बात नहीं करूंगा। सब लोगों ने सांप सीढ़ी जरूर बचपन में खेली होगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ तो आपकी जो गोटी है वो सांप पे आती है, सीढ़ी पे आती है, सीढ़ी पे आती है तो आप सीढ़ी चढ़ जाते हैं, सांप पे आते हैं तो कट के नीचे आ जाती है। हम लोगों ने उस गेम को मॉडिफाई करके ये किया कि सांप और सीढ़ी हमने एक ही जगह रख दी कि I'll finish my so उसमें आइडिया ये था कि अगर बच्चा आंसर देगा क्वेश्चन का तो वो सीढ़ी क्लाइंब कर जाएगा, और आंसर नहीं दे पाएगा तो वो सांप से कट के नीचे चला जाएगा। तो बच्चे घर जाके इसलिए पढ़ते थे कि मुझे सांप सीढ़ी जो हम स्कूल में खेलते हैं उसमें हारना नहीं है। So the idea is that अगर आप इनोवेटिव तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। So I'll skip few parts of this presentation. इसमें RTE की बात है, हमारा जो उससे इम्पैक्ट आया उसकी बात कर रहे हैं कि फ्री साइकिल से क्या हुआ। कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। अक्सर ये बात होती है कि जो हमारा ट्रैकिंग है चाइल्ड्स का वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा, खास करके बच्चियों का और जो वल्नरेबल ग्रुप है। तो हम लोगों ने एक चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप बनाया है जिसमें कि इस साल हमने प्रत्येक घर का जो डेटा हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन से लिया और हमारे पास जो डेटा उपलब्ध था, हमने प्रत्येक घर का बच्चे को कोशिश की कि वो देखें कि वो प्राइवेट स्कूल में है, गवर्नमेंट स्कूल में है, नेवर एनरोल्ड है या ड्रॉप आउट है, बिकॉज उसी से हमें ये पता चलेगा कि हमारा ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा क्यों है, और उससे हम लोग डाटा सेंट्रिक डिसीजन ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चों को अपने कल्चर के प्रति जोड़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशनल स्पेस डे, वीर गाथा प्रोजेक्ट, लाडो अभियान। इसके बावजूद भी जो हम चैलेंज के तौर पे देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो शो करता है कि ईयर आफ्टर ईयर जो ड्रॉप आउट रेट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? सोशल हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हो सकते हैं जिसको कि हम लोग प्लग करने के लिए प्रयासरत हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सोशल सेक्टर में अगर आप कोई भी काम करता है, ऐसा विभाग है जहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट बहुत आता है, ऐसे फैक्टर्स जो कि इस विभाग के कंट्रोल में नहीं है। अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण बच्चा ड्रॉप आउट कर रहा है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकता। एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज टू क्लोजली वर्क विद आवर सिस्टर डिपार्टमेंट्स एंड देन ओनली वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
अगर उसके पेरेंट्स जो है माइग्रेट करते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, एनसीआर जाते हैं, उसकी वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है, सो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन अनलेस वी कोलैबोरेट विद रूरल डेवलपमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स. I think last but not the least, it's important that we should use technology. हम लोग एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम बच्चों से शेयर करते हैं कि दुनिया बदल रही है. अब वो जो एकला चलो रही है और अकेले बैठ के पढ़ने वाला और कंपटीशन क्रैक करने वाला ज़माना ख़त्म हो गया है. अब कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, टीम वर्क की बात हो रही है, चैट जीपीटी की बात हो रही है. तो अगर आप सिर्फ डोमेन स्किल्स तक रहे तो आप कुछ ना कुछ छूट जाएगा. आपको लाइफ स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे, आपको नई लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेंगी, आपको चैट जीपीटी और डिजिटल स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे. आपको जो दुनिया की दौड़ है जिसमें एक मैक्रो इकोनॉमिक को एक स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो वो हम लोग तभी दे सकते हैं जब हम लोग डोमेन स्किल्स के अलावा जो साइड स्किल्स हैं उस पर भी फोकस कर पाएं. एंड आई थिंक आई कंक्लूड बाय सेइंग दैट क्योंकि बच्चा घर से स्कूल आ रहा है, it is the responsibility of my department and more importantly every teacher in the state to make sure there is joyful learning. हम लोग हमारे CM राइज और सांदीपानी स्कूल जिसको आपने सुना होगा, उनके उत्कृष्ट प्रिंसिपल्स को लेके सिंगापुर गए थे. एंड आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट एंड वी सॉ दैट इन सिंगापुर इन द मंथ ऑफ जनवरी व्हेन वी गॉट अ चांस टू विजिट विद 120 जो हमारे मेरिटोरियस प्रिंसिपल्स हैं, कि बच्चा स्कूल में आता है तो आधा घंटा पहले उसे पढ़ाते ही नहीं है. पहले 5-10 मिनट तो उससे जो है वो हाई फाई करते हैं टीचर्स, और बच्चे को ये इंश्योर करते हैं कि पहले वो घर से निकला है, छोटी एज का बच्चा है, अपना मदर का वो आंगन छोड़ के आया है. सो पहले तो उसको ये फील करवाना कि मदरली फीलिंग वो मिस ना करे, उसके बाद फिर पढ़ाई की जाती है. दैट इज कॉल्ड जॉयफुल एंट्री इनटू अ क्लासरूम अलॉन्ग विद जॉयफुल लर्निंग. थैंक यू सो मच. हरजिंदर सिंह साहब, आई जस्ट लाइक टू आस्क यू कि टीचर्स के कितने वैकेंसी है अभी? I think this is a very important fact that हमारे पास जो टीचर्स की वैकेंसी है लगभग स्टेट में 80,000 के आसपास होगी, और इस वैकेंसी को हम लोग धीरे धीरे करके फिल कर रहे हैं. बट इन द मीन टाइम, क्योंकि जब तक हम उस वैकेंसी को फिल करें, वी शुड नॉट हैव अ लर्निंग लॉस, तो द स्टेट हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिक्रूटिंग गेस्ट टीचर्स. You have a total number of 29,000 schools as per your slide. It showed that state has about 29,000 schools, and out of that you have presently 4,473 teachers. In your slides, I just got that from your slide. No, I think that they mentioned 4,473 as pre-primary schools. And this 29,000 schools? And the schools are, I believe... Let's go back a couple of them. There are 82,000 elementary schools, and if you add high school and higher secondary, then it is 92,000 in total. 92,000. Yeah. So right now you have a vacancy of 80,000 teachers. And that is why one of the young girls who had gone there, she said, where is she? I mean, she said that there is no teacher coming to her school. कौन था वो? महक क्या? Yes, yes, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ. आगे आ जाओ. कौन सा स्कूल में है आप? हाई स्कूल 11th क्लास. कहाँ पर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सर दमोह जिला. दमोह. अच्छा, आपने बताया आपके स्कूल में टीचर नहीं है. सर टीचर आ तो गई हैं, लेकिन पेपर के 4 दिन पहले आई हैं, केमिस्ट्री की टीचर. यानी पेपर के 4 दिन पहले? हाँ. तो पूरे साल क्या कोई टीचर नहीं था क्या आपके पास? सर जो अगली साल टीचर थी उनका रिजल्ट खराब आया, तो मतलब उनको नहीं लिया गया, वो नहीं आई हैं. These are the guest teachers. Guest faculty. Guest faculty. I would like to please. जो सबसे बड़ा एक आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि टीचर्स एब्सेंटिज्म की बात बहुत होती है, कि टीचर्स जो है वो स्कूल आते हैं नहीं आते, उसको कैसे ट्रैक किया जाए. सो दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड विद द टीचर्स अटेंडेंस ऐप ऑल्सो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ अ वेरी पोलिटिकली सेंसिटिव डिसीजन. टीचर्स अगर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो आई थिंक 50% एम्प्लॉयज़ सिर्फ शिक्षा विभाग के पास ही हैं, और ये काम काफ़ी लंबे समय से होने वाला था, किन्हीं कारणों से नहीं हुआ. बट अभी आप सुनेंगे कि टीचर्स को भी अपनी जियो टैग्ड अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, और उससे जो भी स्थितियाँ पास्ट में आपने देखी होंगी वो सुधर रही हैं, बिकॉज हम लोगों ने जो पायलट सर किया है, सो वी हैव कम टू नो दैट. So there is some resistance, but I think
with the passage of time that resistance will go. How do you have the selection process to find out whether the teachers are qualified or not? And not once that who would say that Hanuman was the first astronaut in space. No, that's So, our honorable previous minister, or our central minister, who's made that statement after asking the students who was the first astronaut. And most of the children said that it was Neil Armstrong, which is not very right, but someone from the behind said Yuri Gagarin. But the honorable former minister has very categorically said that I feel it is Hanuman. I hope you're not getting those kind of teachers. So, sir, I would like to inform that the education department is not involved in the selection of teachers. It is a professional examination board, जिसको हम PEB बोलते हैं. So PEB is responsible for selection of teachers. So because if we get such teachers, you'll increase our work. You see, it'll come back to us. So the other thing that ma'am, I'd like to ask you, you see section 43 of the POCSO Act, it makes it imperative that the public awareness about the act, the central government and every state government shall take all measures to ensure that A, the provisions of this act are given wide publicity through media, including the television, radio and print media at regular intervals to make the general public, children as well as their parent and guardians aware of the provisions of this act. B is officers of the central government and the state government and other concerned persons, including the police officers, are imparted periodic training on the matter relating to implementation of the provisions of the Act. Madam Shankar, if I can ask you whether that kind of thing ever happened during your time, that periodic training was given to the police officers in relation to the POCSO Act. It was being given. Yes, but this kind of dissemination of the information over the print and electronic media is not being done. It's not being done in our state. At least if I hear the FM radio quite often, but never hear it on that. I don't know whether it's being... in the print media also, you don't see it, any advertisement in the paper saying that it's an offense to run away with a girl below the age of 18. And there's no, and in the schools or in the bus stands, do you put up posters and flyers saying that it's an offense under section so and so of the POCSO Act? Or even if you don't get this thing at sections, if you merely say that you run away with a girl who is under 18 years, you can lose 10 years of your life. As simple as that. Is there any kind of dissemination of information? Sir, about the media, it's not there, but a lot of community awareness programs have been taking place, like the figures that I showed. So we have a lot of community outreach at the Gram Panchayat level. That means that, strict compliance as far as 43 is not being done, which has said that the central and the state government shall disseminate the information over print and electronic media. I remember in the MP High Court, the matter was taken up in one of the rape cases. A court had taken it up. And it had issued notices to the officers of the state to join through video conferencing, and then the bench changed, and all of a sudden the case itself disappeared. That was almost about 4 or 5 years back. But isn't this something that should be taken seriously? It's a legislative imperative that has to be complied with, but that's not being done. Sir, what steps can you take to ensure that the 43 is complied with? Sir, because we feel that a lot of print and electronic media, of course, electronic media has a lot of access now. It has, especially because of the internet, mobile connectivity. This is something which we should definitely take up. But print media, because of its limitations, we feel that community engagement is much. We have seen better results in that, but we'll definitely look into this. So, community engagement may be fine, but that's still not complying with the requirement of the law. Yes, sir. The law requires you to bring it out in print media. It doesn't give you an option. Print and electronic media, you're supposed to do that. So, is there any kind of an impediment? Otherwise, the courts can give a slight gentle push to it, if need be. No, we will look into it. Huh? We will look into it. I've just joined the department, so I don't know the exact facts and figures about how many ads we've given and what is our cycle of advertisement. So that is why I'm restraining from saying anything about it, but we'll definitely look at it. सिंह साहब, एक ये था कि मॉर्निंग सेशन में भी एक जो हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आई थी, उन्होंने ये बताया कि जो बिकॉज ऑफ 10 to 19 ईयर्स का जो बच्चियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके कारण जो ड्रॉप आउट्स बहुत हैं, स्कूल्स में अगर एक अलग से ईयर मार्क कमरा हो जिसमें इस समय वो अपने पैड्स चेंज कर सकें. दूसरा, सैनिटरी पैड्स का आपने बताया कि 300 रुपये पर गर्ल, वो डायरेक्ट उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है.
लेकिन वो कंसोलिडेटेड ट्रांसफ़र होता होगा तो वो जो उनकी माँ है या उनके पिताजी हैं उन्होंने हो सकता है उसमें दूसरे कामों में यूज़ कर लिया और उस चीज़ को नहीं किया क्योंकि सेंसिटाइजेशन नहीं है। तो स्कूल एजुकेशन टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का इस एडोलेसेंस के लिए, बच्चियों के, गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ ऐसा वर्कशॉप्स, कुछ सेंसिटाइजेशन कर सकता है क्या? क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये या सब्जेक्ट्स यहाँ जो हाउस में जो लोग थे सबका ये सोचना था कि जब तक पेरेंट्स और टीचर्स सेंसिटाइज नहीं होंगे और बच्चे साथ में यानी मेल चाइल्ड भी, तब तक वो बच्चियों को थोड़ा सा एक सोशल टैबू या सोशल लिमिटेशन लगेगा। कुछ ऐसी योजना है क्या? सर, जो फर्स्ट पॉइंट है कि दे शुड हैव अ सेपरेट रूम फॉर ड्यूरिंग दैट पीरियड, so I think that will all depend upon the infrastructural gaps and availability, sir. But I think that is very important. The idea is well taken, sir. The other thing, sir, is that SMCs have a representation from the parent side also. Abhi recently, sir, we had election of the SMCs. Every second year, there is an election where parents are actively encouraged to participate, and they are called for the parent-teacher meetings also. The idea is that whenever we do a DBT, there is always a challenge that whether the money will be used for the purpose for which the DBT was done. And I believe you know the government functioning. The other challenge is if we don't go for the DBT and if we actually give them in kind, there are huge procurement challenges whenever you go for a large scale centralized procurement in there must be challenges in other states, but working in the state for the past 14 years, I have seen that I have personally seen very procurement challenges when you actually run a big procurement in Madhya Pradesh. So we know that the issue is that कि पैसा आपने डाला उसका उपयोग हुआ नहीं, तो इसलिए पैसा डालने से पहले हम लोग अपने फील्ड फॉर्मेशंस को ये बताते हैं कि आपको एसएमसीज में पीटीए की मीटिंग्स में ये जागरूकता लानी है ताकि फंड्स का डाइवर्जन ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स के माध्यम से सेंसिटाइजेशन कुछ करा जा सकता है क्या इस बारे में? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी है, ये बिसाइड डीबीटी ये कॉन्सेप्ट भी है जो कि सेंसिटाइजेशन से जुड़ा हुआ है और वो बच्चियों को उसके कारण से कई बार हार्डशिप झेलना पड़ती है, तो वो हार्डशिप को ओवरकम करने के लिए कुछ ऐसा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स सोसाइटी एट लार्ज तो होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम पेरेंट्स का और टीचर्स का, ताकि टीचर्स भी उस बच्ची को उस एंगल से ना देखें और उसकी वो चीज़ को हार्डशिप ना माने, उसको इनकरेज करें, क्योंकि वो पीरियड उसके लिए मूड स्विंग्स का, उसके हार्मोनल चेंजेस का, उसके लिए कुछ दूसरे थॉट्स का आ रहा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स इक्विप्ड हैं क्या? उसके लिए कोई सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कंटिन्यूस बेसिस पे चलाए जाए। I think sir, regularity I think is an important issue that it should happen regularly. और district level पे sir there is a district level gender core group और जब भी हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सिलेक्शन होता है वार्डन्स का, असिस्टेंट वार्डन्स का, तो उनका एक जो लेटर एंड स्पिरिट में काम करने की बात आती है कि उनका जो कमिटमेंट है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल पोजीशन टू वर्क एज ए वार्डन और असिस्टेंट वार्डन फॉर ए गर्ल्स हॉस्टल। सो वो कमिटी जो है वो दैट इज़ वाई वी हैव मेड द कलेक्टर द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सो दैट द सिलेक्शन इज डन इन ए फेयर वे एंड नहीं, वो तो आप लॉजिस्टिक्स बता रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कि ये बच्चों को भी सेंसिटाइज करा जाए, पेरेंट्स को करा जाए और टीचर्स को करा जाए, उसके लिए कोई आप वर्कशॉप या उसके लिए कोई योजना बनाइए जिसको रेगुलर बेसिस पे करा जाए। वार्डन्स वगैरह तो ठीक है कि वो करते रहेंगे कभी कभार, लेकिन रेगुलर बेसिस पे सोसाइटी ताकि थोड़ा सा उस चीज़ को समझे। सर वी हैव बीन डूइंग सच काइंड ऑफ वर्कशॉप्स विद यूनिसेफ। वो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमको ये बात करनी थी कि वो बच्ची 5 दिन 7 दिन तक स्कूल नहीं गई तो कहीं पढ़ाई में पीछे है रह गई, उसको उसके साथ अब कोप अप करना है, तो ये टीचर का सेंसिटाइजेशन हो कि वो पेरेंट्स को पूछे कि बच्ची कहाँ है, क्यों नहीं भेज रहे स्कूल। तो अगर आप भाई हर पेरेंट के पास तो आप नहीं जा सकते, टीचर्स तो आपके कंट्रोल में है ना, आप उनके साथ ये चीज़ आगे बढ़ाएं कि वो इस चीज़ की को देखें कि बच्ची का इस पीरियड में बहुत सारी, और सर ने जैसे कहा कि वो हार्मोनल और उनके जो चेंजेस हैं, मूड स्विंग्स हैं, उसको तो एड्रेस करे ही करे, उसकी पढ़ाई भी तो पीछे जा रही है। आई थिंक मैम जो लर्निंग लॉस की आप बात कर रही हैं, सो इवन इफ वी आर नॉट डूइंग इट ऑन ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बेसिस,
So we will take this fact into consideration, and we will institutionalize this thing also. Although we have been doing it in an ad hoc way, not in a very Harjinder sir, what brother is saying, he has a point. You see what will happen, ठीक है, आपकी नीयत बढ़िया, 300 रुपए आपने लड़की के अकाउंट में डाल दिया, उसके पिताश्री उससे दारू पी गए, 300 रुपए खत्म, और उसके बाद the child doesn't go to school. Can you think of involving the corporates who are making these articles under the CSR, corporate social responsibility, to put up vending machines in schools itself or the hostels where they are staying? That may be a feasible option. So, Government of India, Department of School Education and Literacy, they have a CSR portal called Vindhyanjali. Recently, we told all our schools that whatever funding comes from state or central government, that portal, the idea is that कोई भी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट CSR फंडिंग के लिए उस पोर्टल के माध्यम से किसी भी स्कूल को सपोर्ट कर सकता है. सो वी इनिशिएटेड दैट आइडिया ऑल्सो दिस ईयर, दैट लेट द स्कूल से वॉट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिक्वायरमेंट्स सिर्फ सरकार ही फुलफिल करेगी. NGO पार्टनर्स और जो हमारे सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इच्छा से अपने स्कूलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट करना चाहते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट पोर्टल, एंड आई बिलीव जो सर वर्कशॉप का आइडिया है और उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात है, सो वी विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट इट इज़ डन इन फ्यूचर सर. Sir, I want to say something regarding this to sensitize. There can be some competition which can be arranged in the classroom, some essay or some poster making, so that the girls can be involved and the entire class can be involved. This is the best way to directly make them understand this. And the girls, once the girls get sensitized, they will definitely know about that the money has been transferred for them and which can be utilized. And apart from that, the corporate is also contributing. I know many NGOs are collecting old clothes and they are giving it to the corporate and they are converting into sanitary napkins, and which they are selling. They are not selling, they are distributing. So there are many NGOs which are involved in this, those who are working for this. Generally, we have been doing this on, I think, major occasions, including the International Women's Day. So essay writing, debates, competitions, that is a regular part of our academic calendar. And we are cautious about the fact that, along with the good NGOs, there are all kinds of NGOs in the system. So we are cautious of the fact. Even for the class test or something like that, it can be done. Not on only occasions once in a year. If it becomes a regular practice, then they will be more sensitized towards this. Right, ma'am. हम जब बात करते हैं तो सैनिटरी नैपकिन का जो सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की एक रिसर्च का हवाला देना चाहता हूँ. एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने में 1, 2, 3 साल नहीं, 500 साल लगते हैं सर, एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने में. तो आप टोटल लाइफ में अगर यूज़ किया है तो एक बड़ा संख्या है. तो इस सैनिटरी नैपकिन के कारण सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर दोनों डिस्टर्ब हो रहा है. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जहाँ हम सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की बात करते हैं, साथ ही हमें इंसिनरेटर्स फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ यूज सैनिटरी नैपकिन के लिए को भी इंस्टॉल करना चाहिए, विशेषकर हॉस्टल्स में और जो छात्रावास है जहाँ गर्ल्स की संख्या है. अगेन आई वुड लाइक टू अपडेट यू दैट हिंदुस्तान लेटेक्स जो लिमिटेड है, उसको इस साल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, दे हैव ऑलरेडी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द इंसिनरेटर्स. ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एंड दे विल बी, आई थिंक दे विल बी इंस्टॉल्ड इन नेक्स्ट 6 months. सर, आई हैव अ क्वेश्चंस. मुझे सजेशन चाहिए था. एक्चुअली एक सर्वाइवर है, भेड़ाघाट थाने की है, वो बच्ची 12 years की है. सो उसका ये है कि वो दमोह डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल में थी, देन जबलपुर आई, तो अभी वो 1 year से स्कूल नहीं गई है बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है. तो हमारा ये था कि हम जबलपुर में उसका एडमिशन करवाएं, बट स्कूल से ना TC नहीं मिल रही है उसके. गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, प्राइवेट में? सर, गवर्नमेंट में. गवर्नमेंट में तो 8वीं कक्षा तक कोई शुल्क नहीं लगता. नो सर, जिस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था, पास्ट जिस स्कूल में थी वो, वहाँ से हमको उसका मार्कशीट चाहिए. वो भी गवर्नमेंट स्कूल है क्या? नहीं सर, वो प्राइवेट है. So I think I will suggest you to give it in writing to the concerned district collector and or the district education officer. Okay. And वो कौन सी कक्षा में सर वो 5th में थी. 5th में थी, तो आप वहाँ के DPC को, किस डिस्ट्रिक्ट का बता रहे हैं? वो दमोह डिस्ट्रिक्ट में थी. अभी जबलपुर में. DPC दमोह को, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर दमोह को आप राइटिंग में दे दीजिए, ही विल इंश्योर दैट.
ओके ओके सर। सर उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है बिकॉज उसकी मदर का डाइवोर्स हो गया है और उसकी मदर यहाँ रेंट पे रह रही है, सो उनका कनेक्शन नहीं है किसी तरीके से फादर के साथ। So my DPC जबलपुर is also a part of audience here only. तो आप okay. काइंडली यही हैं योगेश शर्मा जी, Okay, आप sir. इनको डिटेल्स दे दीजिए. ही विल टॉक टू हिज कलीग इन दमोह. ठीक है, थैंक यू योगेश आप ले लीजिएगा ना डिटेल्स. ओके सर। Good evening, sir. So my question to you is, जितने भी टीचर्स अभी आपके पास हैं एम्प्लॉयड स्कूल्स में, क्या आप मुझे थोड़ा सा आइडिया बता सकते हैं कि उसमें से काउंसलर्स कितने हैं स्कूल्स में? मध्य प्रदेश के स्कूल्स में काउंसलर्स मास्टर्स किए हुए नहीं, कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के किए हुए लोग जो स्कूल में ही जैसे बुलिंग होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एरिया है, सुबह से शायद बुलिंग वर्ड के ऊपर चर्चा नहीं हुई है, बट मैं जानना चाहूँगी कि स्पेशल एजुकेटर्स, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन नीड्स भी बहुत हैं बच्चों की, उसकी वजह से भी ड्रॉप आउट्स होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स. सो do you have a provision in the whatever capacity of teachers that you have? First question is this: what is the percentage of counselors and special educators? And sir, if your answer is a low percentage, what would you want to do about it, sir? So you have two questions regarding counselors and the second is regarding special educators. Yes, no, the two questions are, if the answer to the first question is that the number is low, Okay. then I would want you to share your insights on what can be done. Yeah. So far as your first query regarding counselors is concerned, so the Government of India has recently launched a program called PM Shri, PM Schools for Rising India. So some schools have been selected from the present lot, and all PM Shri schools have to be saturated with 22 parameters. One of the parameters is having these counselors also. We have started on a low scale, but once we, we implement those reforms in those PM Shri schools, then we will scale up. So that's regarding the counselors, and we really appreciate this suggestion coming from the audience that counselors are required. And the second thing is regarding the special educators. हमारे पास जो children with special needs हैं, उसके 52 boys के hostels हैं at every district level, and 9 hostels are there at the every divisional level for girls. So 61 50-seater hostels are there for CWSN children. हर ब्लॉक में, मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 2 मोबाइल रिसोर्स कंसल्टेंट्स हैं, मोबाइल स्रोत सलाहकार, जिनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, उसका दायित्व है कि वो प्रिलिमिनरी डिसेबिलिटी को एनालाइज करेंगे, बताएंगे, बच्चे का डेटा बनवाएंगे और डेटा गैदर करेंगे, और अगर वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ऊपर है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स 40% एंड अबव, then his unique disability ID card will be created, and if he has some issue, तो हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो समग्र शिक्षा में we conduct every alternate year camps in blocks whereby these disabilities are identified, और 2 सेकेंड राउंड में उन बच्चों को फिर हम लोग जो भी कैलिपर्स या जो भी कुछ उनको ज़रूरतें हैं, जो भी हेयरिंग एड चाहिए, so those camps are conducted for those children. And on the top of it, if there are some children who are not able to even come down to CWSN hostel, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि CWSN hostel तक भी नहीं आ पाते, उनको होम बेस्ड एजुकेशन किट, जिसको HB बोलते हैं हम लोग, वो भी उनके घर तक पहुंचाई जाती है. The number is small, the number is not very big. So and this identification is an education issue. kit, does it have any individualized education plan for children with special needs? Because I do disability assessments. I'm a clinical psychologist. And one of the prominent recommendations that I give in all my reports, which go for the UDID certification further, is that remedial education is required. ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि किसी न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ नहीं पा रहा है. इस प्रॉब्लम का जेंडर से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट इस प्रॉब्लम को हम अगर लड़कियों के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिस्कशंस हुए हैं मॉर्निंग से लेकर अभी तक उनके जेंडर को लेकर कि लड़की होने का साइड इफ़ेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या हैं, ये और उसको मल्टीप्लाई कर देता है. तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा इसमें सर, बिकॉज आई एम फ्रॉम द मेंटल हेल्थ फील्ड ओनली, सर वी नीड टू आइडेंटिफाई टीचर्स who can specifically do the task of special education,
and specifically counselors which are non-teaching, which do not have anything to do with going into the classroom and teaching, and are only psychologists or counselors for the school, for especially the girl child. That is my suggestion. And one more thing, sir, because I work in the drug-related area also, non-intrusive methods for identifying children who are taking drugs. अगर हम ये अचीव कर पाते हैं मध्य प्रदेश में, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस स्टेट के लिए, क्योंकि ड्रग का जो मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट होता है वाइटनर से, इनहेलेंट से, जो यंग एज में स्टार्ट होता है, वो आगे जाके हार्ड ड्रग्स में बनता है जब बड़े होके हमारे सामने ऑनरेबल जस्टिस के सामने वो केसेस आते हैं. तो अगर ये जिसको हम बोलते हैं वाइटनर हो गया, इनहेलेंट हो गया, इसी स्टेज के ऊपर स्कूल्स में अगर इसको रोका जाए नॉन इंट्रूसिव तरीक़ों से, माना कि मेरे को बच्चे को सिर्फ देख के समझना है कि वो किसी नशे की लत में है या नहीं, उस तरीके की सेंसिटाइजेशन ये जो नॉन टीचिंग काउंसलर्स हैं इनको अगर हो तो आई थिंक राज्य को बहुत मदद मिलेगी इस एरिया में. सो देयर आर टू एंगल्स टू दिस थिंग. वन इज़ द अवेयरनेस साइड जो कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देयर इज़ अ लॉ एनफोर्समेंट साइड जो कि सप्लाई साइड को कर्टेल करने की बात कर रहे हैं हम लोग. सो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन बोथ फ्रंट्स. नमस्कार सर. थैंक यू. सर मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ, भोपाल से हूँ, लॉ ऑफिसर पुलिस कमिश्नरेट में, डॉक्टर मनीषा पटेल. सर मैंने पॉक्सो में ही पीएचडी की है. सर मेरा एक सजेशन था कि जैसे हमारे लिए पॉश के लिए एक कमेटी बनी हुई है, तो क्यों ना स्कूल और कॉलेज में भी पॉक्सो के संबंध में एक कमेटी बनाई जाए, और जो बच्चों के लिए काम करती है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, जैसे सबसे पहले बच्चा जो जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, अपनी कंप्लेंट फाइल करता है, फिर काउंसलर के पास जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर उसके बाद कोर्ट के पास जाता है, तो वहाँ उन्हें प्रोसिक्यूटर मिलता है, फिर जज साहब मिलते हैं. तो ये पांचों एक्सपर्ट को उस कमेटी में मेंबर बनाया जाए, और सोसाइटी का एक एक्सपर्ट भी उस पर रहे, ताकि वो पूरा मंथली या वीकली जैसा भी पॉसिबल हो, तो उस स्कूल में और कॉलेज में यदि कोई क्राइम हो रहा है या कोई क्राइम कर रहा है, क्योंकि सर ये समाज से ही आरोपी भी निकल रहे हैं, और छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो विक्टिम बन रहे हैं कहीं ना कहीं. तो हमें उन एक्यूज़ बच्चों, जो बच्चे बन सकते हैं, कॉलेज के बच्चे एक्यूज़ बन सकते हैं, तो उनको भी हमको सेंसिटाइज करना ज़रूरी है पॉक्सो के संबंध में. और बच्चियों को भी स्कूल में और छोटे बच्चों को भी बताना ज़रूरी है कि बेटा यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये कमेटी स्कूल में बनी हुई है, आप बिना झिझक के, बिना डर के आप इस कमेटी में कंप्लेंट कर सकते हैं. I think I really respect the spirit of your question, but since I'm not in a position here to commit on behalf of government, so I can only forward your idea to the appropriate authority. Thank you. Thank you. Sir, एक question मेरा This भी है. would be Honorable Chair. I will request that this would be last question. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन मेरा है कि आजकल भिक्षावृत्ति वाले बहुत बच्चे मिल रहे हैं और नशे वाले बच्चे, क्योंकि सर मैं CWC से हूँ, तो हम जब जाते हैं तो हमारे पास अभी भिक्षावृत्ति में हमारे ड्यूटी थी, उसमें मैम सर हमने बहुत बच्चे रेस्क्यू करे हुए हैं, बट उनके साथ एक ही इशू है कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, और उनको स्कूल में एजुकेशन से मतलब अलग कर दिया जाता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं होंगे तब तक इनको लिया नहीं जाएगा. फिर वापस हमें उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो घुमंतु फैमिली से होते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हमें, कि हम उनको उस बीच में हम शिक्षा से जोड़ सकें उनको. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज़ किया है. इस साल जब हम लोग एनरोलमेंट के फिगर्स को देख रहे थे और इस बात पे चिंता थी कि हमारा एनरोलमेंट ड्रॉप होता है, तो इस बात पे भी विशेष ध्यान दिया गया कि हमें डॉक्यूमेंट्स की जो अनिवार्यता है उसको कम करना चाहिए, उसको सरलीकरण करना चाहिए. इनकम टैक्स भी आज की डेट में सरल फॉर्म बनाता है, सरल 2, 3, 4 सरल की तरफ दुनिया जा रही है. टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, मध्य प्रदेश में सब लोग जो मध्य प्रदेश के उनको पता है कि मध्य प्रदेश में एक समग्र आईडी है, और स्कूल में जब भी एडमिशन होता है गवर्नमेंट में तो समग्र आईडी मानी जाती है, बिकॉज समग्र आईडी एडमिशन में रोड़ा अटका रही थी कि किसी के पास समग्र आईडी नहीं है, तो मास्टर जी ने बोल दिया कि समग्र आईडी लेके आओ और तभी वो एडमिशन करेंगे. और हमको पता है कि समग्र आईडी बनाने के लिए जब किसी निकाय के पास जाइए, अर्बन या रूरल बॉडी के पास, जो व्यक्ति जानकार नहीं है, जिसके पेरेंट्स इलिटरेट हैं, वो कई बार ऐसा हो सकता है कि समग्र आईडी के लिए उस पर समय नहीं है, वो सुबह से शाम अपने ज़िंदगी के चक्रव्यूह में लगा हुआ है, तो उसके कारण कहीं बच्चा वंचित न रह जाए. तो मेरे स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी भी वो जानते हैं कि इस बार हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे हमने समग्र आईडी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी. द आइडिया इज़ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा जो है स्कूल आया है,
किसी डॉक्यूमेंट के अभाव में वापस नहीं जाना चाहिए. तो वी हैव बीन टेकिंग स्टेप्स इन द राइट सर डायरेक्शन. हमारे पास मतलब 5 साल का बच्चा है, उसको फर्स्ट टाइम स्कूल में भेज रहे थे, बट उतने छोटे बच्चे के भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जबकि अच्छा, मैं वो एक बार जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या मांगा डॉक्यूमेंट. सर मैं आपको बता रही हूँ, वो भिक्षावृत्ति से हमें बच्चा मिला था, उसके पेरेंट्स हमें नहीं मिले, वो शायद किसी दूसरे के थ्रू रहा होगा, तो वो उस बच्चे ने खुद ही बोला बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे होंगे. जी जी, आधार कार्ड समथिंग लाइक मतलब दैट. हमें सीसीआई से ये बोला जा रहा है कि मैम इसका एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं, प्रिंसिपल लेती नहीं, बार बार किस मना डिस्ट्रिक्ट कर का केस है ये? सर ये यहीं जबलपुर का ही है. सो योगेश शर्मा जी आप जरा देखिए और फिर उन्हें देख के बताइएगा. सर मैम एक क्वेश्चन आपसे भी है कि जैसे मैम जो नशा मुक्ति वाले बच्चे होते हैं, इनको हम कहाँ भेजें कि जो, क्योंकि उनमें 8-10 दिन बाद सीसीआई में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, वो क्रेविंग होती है उनको, और वो बड़ा मतलब तड़पड़ाते हैं, बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा, या कोशिश भी करते हैं. तो उन बच्चों के लिए हम ऐसा क्या करें कि उनका नशा मुक्ति के लिए उनको इनिशियली उनके पे ध्यान दिया जाए. Normally government का policy है that we have to bring them back to the families rather than keeping them in institutions. So अभी तक जो all the centers I have visited, because मैंने अभी just recently join किया है, focus यही होता है कि temporarily हम इनको institutes में रखें और इनका individualized plan बना के इनकी counseling करके कोशिश करें बच्चे वापस अपने फैमिली के साथ चले जाएं. आपको पता है ये उस फैमिली के बच्चे हैं जो कि भीख मंगवाते हैं, और वही सारे स्टेशन और इनके आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि वही बच्चे हैं जो नशे में हैं पूरी तरह से. अभी हमने 13 से 14 बच्चे पकड़े थे मैम लास्ट वीक. वो सारे उनमें से मतलब मैं जब उनके पास गई ना, तो मैम इतना सारा उनके पास सोल्यूशन बोलते हैं वो उसको, वो था, और वो बड़े अच्छे से सूंघ के हमें बता रहे थे कि हम इस तरीके से हमने नशा किया हुआ. अब मैम उनको अगर हम वापस उन पेरेंट्स के पास वापस भेजना ही पड़ेगा, अगर पॉलिसी हमारे आगे आएगी तो. नॉट इमीडिएटली जैसे वो बच्चा रेडी हो एंड द फैमिली इज इन अ पोजीशन टू टेक केयर ऑफ देम, दैट इज व्हेन वी सेंड देम. मैम फैमिली तो लेना चाहती, क्योंकि दोबारा फिर वो दोबारा से उसी चीज़ में वापस भेजेंगे, तो हम तो इनको थोड़ा सा लंबा टाइम खींचते हैं कि उस बीच बच्चे को हम थोड़ा सा काउंसलिंग के द्वारा उनको कुछ अच्छे बच्चों के साथ रख के शायद वो अपना माइंड चेंज कर सकें. जैसे कि अभी एक बच्चे का था कि वो पहले ड्रग्स वगैरह में था, बट बाद में उसने उस चीज़ से अपने आप को अलग करा. वैसे हम उनको 3 से 4 मंथ मैम खींचते हैं. पेरेंट्स को भी हम नहीं देते बच्चे को. एनजीओ में है? नो मैम, CWC नंबर. ओके जी, तो मैम हम वहाँ पे बहुत कोशिश करते हैं कि इनको हम थोड़ा सा तो दूर रख के कुछ तो अच्छी चीज़ें दे सकें, ताकि वो फ्रेश माइंड में सोच सके कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ. बट उसके बाद हमें वापस छोड़ना पड़ जाता है पेरेंट्स के पास में, और वो वापस फिर उसी उसमें आते हैं, और ज़्यादातर हमने देखा कि बार बार वही बच्चे आ रहे होते हैं. ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आई विल जस्ट टेक अ लुक इनटू इट, बिकॉज वी हैव इंस्टीट्यूशंस व्हिच टेक केयर ऑफ सच चिल्ड्रन. जबलपुर में भी होंगे, तो आई विल जस्ट टेक अ लुक इनटू दिस. अब ये बहुत सीरियस मैटर था, इसके लिए ज़रूर डिस्कस करिए. थैंक यू. डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कितने जजेस हैं यहाँ पर? कोई? यस. As far as you people are concerned, please, as far as POCSO cases are concerned, please bear in mind, more than 60% of the under trials are relating to POCSO cases. They're all POCSO matters, they are under trials. And please, जहाँ आपको लगता है कि consent है, एज का मामला है, एज अगर 15 के ऊपर है, please consider at least granting bail. ये the High Court is all choked up with these matters. तो आप कंसिडर करिए उन मैटर्स को, और वहाँ से स्टार्ट पासिंग पॉजिटिव ऑर्डर्स ऑफ ग्रांट ऑफ बेल रादर देन सेंडिंग इट टू द हाई कोर्ट. सर कई ऐसे केसेस हैं जिसमें माननीय न्यायालय की ओर से बेल नहीं दिया, और ये जो बच्चियां हैं उन्होंने बताया है कि मेरी एज बच्ची ने एविडेंस के दौरान बताया कि उसकी एज 18 इयर्स है, माँ ने भी बताया कि 19 इयर्स है, लेकिन डीएनए पॉजिटिव आ गया है, हाई कोर्ट से भी बेल नहीं हुई है. ऐसे में हम कैसे दे सकते हैं? नहीं, उसमें तो खैर हाई कोर्ट के जजेस को एनजे नेशनल जुडिशियल एकेडमी में हमें सेशन देना पड़ेगा, वो अलग से विल टेल द डायरेक्टर ऑफ द एनजे बैडली रिक्वायर्ड. अगर दोस्त में भी वेरी फ्यू केसेस जहाँ पर शायद, मगर जहाँ पर ऐसा ऑर्डर्स ना हो, कोई इम्पिडमेंट ना हो आपके पास, जहाँ पर ना हो, तो जहाँ पर हाई कोर्ट ने ये कंसिडर कर लिया कि मदर है, मदर ने 18 बताया है और वो लड़की का भी एज 18 है, सिर्फ एफएसएल के रिपोर्ट में और कंसेंट दिख रहा है, मगर वो कंसिडर करने के बाद अगर हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है तो डोंट ट्राई टू इंटरफियर इन दैट.
जी। Because that's being considered, please tell the person to go and move the High Court itself or go to the तो Supreme सर Court. ऐसे ऑर्डर को देख के फिर हम दूसरे ना cases में उसमें नहीं, उसको अलग कर दीजिए। जहां पर हाई कोर्ट ने कंसिडर कर दिया उसी फैक्ट्स को और उसके बाद नहीं दिया है, तो फिर उस केसेस को छोड़ दीजिए, लेट हिम गो टू द सुप्रीम कोर्ट और फाइल अनदर एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट। मगर हर केस ऐसा नहीं होता, बहुत सारे केसेस जो आपके पास पहली बार आते हो तो हाई कोर्ट पहुंचने से पहले आप दे दीजिए, तो सर ऐसे तो फिर हाई कोर्ट को ऐसा कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ऐसे केस यदि दूसरे केस भी हैं मेरे पास, हाँ। तो उस ऑर्डर को देखते हुए नहीं, दैट्स अ सेपरेट केस। ना एक मिनट, वो अलग केस है जिसमें हाई कोर्ट, जो स्पेसिफिक केस में हाई कोर्ट ने कंसिडर किया है, उस केस में तो आप ना दे, उस केस में ना दे, दिक्कत आ जाएगी। मगर उसके जैसे दूसरा केस हो तो आप पर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। सर यहाँ तक ऑर्डर ऐसे आए हैं कि जहाँ पे डीएनए में ये रिजल्ट आया है कि ये है ही नहीं एक्यूज। हाँ, ये एक्यूज है ही नहीं जी। हाँ, उसमें तो दे दो और क्या। नहीं, तो उसमें हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है। तो अब हम हाई कोर्ट वाले कितने बैठे भैया वो हाथ उठाए अब। और सर मेरे पास 800 केसेस सर अब मेरे पास 750 केसेस हैं और मैं चाहते हुए भी उसको जल्दी डिसाइड नहीं कर सकती। 150 फाइलें मेरे पास जेल। जहाँ हाई कोर्ट के आदेश है उस पर्टिकुलर केस में हैव अ हैंड्स ऑफ अप्रोच। जहाँ नहीं है, क्योंकि दूसरे केस में हाई कोर्ट ने कहा, जहाँ पर डीएनए भी कह रहा कि ये आदमी नहीं है, तो वहाँ पर इट इज नॉट अ लॉ अंटिल अनलेस हाई कोर्ट कहती है इन सच केसेस आल्सो बेल कांट बी गिवन। Where there is an imprimatur, वहाँ पर नहीं ना करे। मगर जहाँ पर ऐसा कोई, मेरे ख्याल से आज तक तो कोई ऑर्डर नहीं है कि डीएनए का टेस्ट अगर नेगेटिव हो, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स का 161 में और 164 में आ गया कि इसने किया था, कि ताकि उसमें बेल नहीं देना। आई डोंट नो वेदर देयर इज एनी सच जजमेंट बाइंडिंग द डिस्ट्रिक्ट। सर मैं उसको डेली लगा रही हूँ, उस केस को जल्दी डिसाइड करूँगी। जहाँ बेल दे सकते, मेरा कहना है कि बेल दीजिए आप लोग, दूसरे स्टेट्स में हो रहा है। Yes. Sir, we talked about dropout rate, and it's true that children migrate, but I'm not sure if that really is a very big factor, because we see that they continue to be enrolled in their school here in Madhya Pradesh when they migrate to another state. In fact, they are denied admission in another state because they continue to be enrolled here. So my suggestion would be... Is that the case? Yes, sir. In many cases... Denial because they are enrolled here? Yes. And how the other state comes to know that they are enrolled here? Because there is no national tracking system as on today? Right. So what happens is, because there are NGOs who are working with brick-in workers, for instance, so when they take them for enrollment to the other school, and they ask for documents, there's no TC, of course, because they haven't dropped out of here. Their name is still enrolled here. So that's when they try and figure out, and they are denied admission there. They are not here, physically they are not here because they are with their parents at the brick-in. So this is an issue where I've been thinking that, if we can have portability with ration card, can we not start thinking of portability? I got your question. So there are two things which are simultaneously happening right now. जैसे आधार है, ऐसे जो जितने भी बच्चे स्कूल गोइंग एज के हैं उनका एक आधार बन रहा है जिसको अपार बोल रहे हैं। इफ़ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। द आइडिया इज़ दैट जब भी माइग्रेशन होता है तो जिस स्टेट से माइग्रेशन हो रहा है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्लान करना इन बच्चों के लिए जो कि माइग्रेट कर रहे हैं। वंस यू हैव अ अपार आई डी फॉर एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री, वी आर ऑलमोस्ट क्रॉसिंग 70% फॉर अपार, तो बच्चा यहाँ आए या गुजरात जाए या दिल्ली जाए तो अपार से वो ट्रैक हो जाएगा। अभी कुछ था नहीं वैसा, but for the past 7-8 months, entire country is on APAR. Okay. The second thing which Madhya Pradesh is doing is that for the last 3 months, if you know that in the 10 साल पहले क्या था, एक विलेज एजुकेशन रजिस्टर होता था VER खत्म होके फिर जब ये UDICE प्लस वगैरह स्टार्ट हुआ तो घर से घर का सर्वे बंद हो गया। So my secretary school education under his guidance and direction, for the last 3 months we have started conducting a household survey in Madhya Pradesh. जो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप हमने बनाया है, अभी इन हाउस बनाया है, उसके माध्यम से हम लोग बच्चे किस घर के किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, या वो 10th के बाद ITI पॉलिटेक्निक जा रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट द डेटा. वी गॉट almost 70% of the data in hand,
And now, in the next month, September, we are focusing on never enrolled. There are 3 categories which are problematic. Never enrolled, out of school mean dropout, and others. Others वो किसी कारण से भी हो सकता है कि क्यों स्कूल एजुकेशन छोड़ रहा है, हो सकता है वो टेक्निकल एजुकेशन चला गया हो सकता है जॉब करने लग गया हो. So when we have a first hand data and when we have a APAR ID at the national level, now when you triangulate these both things and other factors, we will be having a pinpointed data accuracy. And in fact, before I joined here, I was talking to my district program coordinator, Jabalpur, only over lunch. I joined late this session only. So whenever I get an opportunity to talk to my field officers, so मैं उनसे यही जानना चाह रहा था कि जो 3 महीने से मेहनत हो रही है, तो जबलपुर में आप लोग जो है वो ड्रॉप आउट बच्चों का और नेवर एनरोल्ड बच्चों का डेटा का क्या करेंगे, क्योंकि डेटा अपने आप में कुछ नहीं है, डेटा से हमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी है. So very soon, in next 6 months, you will hear good stories coming from Madhya Pradesh. And that will become part of the state plan of action, because Madhya Pradesh has a state plan of action. Definitely, and one of the serious areas of concern for us is dropout rate actually. Yeah. And so with the POXO cases, one faces a lot of difficulty with their admissions, because there are orders passed so that the girls can continue to be in school while they are in a childcare institution. But then often that data goes to different schools, and there is breach of confidentiality. And was that one of your concerns? Yeah. So if we could ensure with POXO victims at least... Is there a established SOP, or you're saying that there should be one SOP first? There should be, sir. There is no established SOP. There should be. And are you expecting the school education department to take a lead, or some like you're just raising the issue? So it will have to come from your department, sir, the school education department. Okay. I mean, because this is about schools. For instance, in Delhi, just 2 or 3 days ago, the school education department issued a circular saying that no child who is from the juvenile justice system should be denied admission. There should be no breach of their confidentiality, to the extent that when they are in schools, then they are stigmatized that this child is coming from a CCI. Can you share such circulars issued in other states? Yes. Please do that. The Delhi one we can definitely share. Please do that. And if Sure, other sir. states have done the same, like whatever you are requesting, then I'll also take it up with my secretary. Sure, sir. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. I seek permission from the Honorable Chair to close this session. Thank you. With this, we come to the end of day 1. There is an announcement. There are a couple of announcements. So we have some beautiful performances for you coming up at 8 p.m. today. Young beautiful minds have devoted lot of hard work. बहुत मेहनत करी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस करने के लिए. तो आपसे सभी से निवेदन रहेगा कि बिटवीन 7:45 to 8 o'clock आप यहाँ पे पुनः एकत्रित हो जाएं, विच विल बी फॉलोड बाय डिनर. बाहर आप जाएंगे तो आपको 3 बोर्ड्स दिखाई देंगे, जो कि एक पोल है, वहाँ पे आपको स्टिकर चिपकाना है अपने जो भी आपका उत्तर रहेगा उस प्रश्न पर. तो उसमें भी प्लीज़ भागीदारी लें, और कल आप समय पर डे 2 के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाएं. थैंक यू.